Assalamu alaikum and welcome to the channel Exam Master. Dear audience, we have launched a new session about grammar. From now on, we will try our best to deliver and provide lectures related to English grammar, which will help you people to compete and crack a lot of competitive exams like PhD, CET, SST, etc. It will also prove beneficial for those students who are training to crack board exams like SSC examination. So today in this lecture we are going to discuss and explain about sentence, types of sentence, structure of sentence, and kinds of sentence. To start today's lecture, I would like to request you people that if you people have not subscribed the channel Exam Master, till now you people are requested to subscribe this channel so that you may receive notification for the upcoming lectures. So today in this lecture we will talk about sentence, that what is sentence. Here with different references and definition we will explain sentence. The first definition is a sentence is a group of words. फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेंटेंस हमारे पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सेकंड कंडीशन विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस के हमने दो एस्पेक्ट डिस्कस किया यहाँ पर कि सेंटेंस क्या है. ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दूसरी बात ये हमें एक कंप्लीट सेंस देगा. सेकंड डिफिनीशन की तरफ चलते हैं. अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स is called sentence. In this definition, we also explain and discuss two aspects of a sentence. That a sentence must be a combination, but which type of combination? A meaningful combination. Let's see the example. The word is mortal. So here we apply the two conditions which we explain in the above definitions. The first one, the word is mortal. We discussed that a sentence is a combination of words. So here we can see the word is mortal. It is a combination of words. Second thing, we discussed that it will give a complete sense. So the word is mortal. Dunya fani hai is a complete sense and it can stand alone. So whenever there is a group of words which can stand alone and gives a complete sense, give a complete meaning, we will say this is a sentence. Second sentence, Sohan is a good teacher. In the second definition, we also discuss two things, that sentence is a combination of words. So here we can see Sohan is a good teacher. There is combination of words. But which type of combination? A meaningful combination. Sohan is a good teacher. So it is clear that we discuss that a sentence must be a combination of words or a meaningful combination. In the first definition, according to this definition, that group of words will give a sense. After this, I would like to explain and discuss structure of sentence. Generally, a sentence comprises a subject and a predicate. हम ये बात कह रहे हैं कि जनरली हमारे पास सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट क्या है? तो हम सब्जेक्ट को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और डोयर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज अ वर्ड, अ थिंग or name of a person about which we are talking about. सब्जेक्ट वो होगा या तो हमारे पास डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, या जो एक्शन का डोयर है वो सब्जेक्ट होगा, या जिस चीज़ के बारे में या जिस
पर्सनालिटी के बारे में हम बात करते हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट ये हमारे पास अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट ये हमारे पास वर्ड्स हो सकते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है जो सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो प्रेडिकेट होगा। तो जनरली सेंटेंस की 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। द प्रेडिकेट में कंटेन, इसमें क्या हो सकती है? वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास वो वर्ड है जो हमें एक्शन डिफाइन करे, स्टेट डिफाइन करे या एक चीज़ का बीइंग डिफाइन करे। अब ये वर्ब 2 टाइप्स के हो सकता है, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स है उसमें डिटेल के साथ वर्ब के बारे में, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। यहाँ पर जस्ट हम प्रेडिकेट के बारे में बता रहे हैं कि प्रेडिकेट में क्या हो सकती है। ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब कभी वर्ब से एक्शन पास हो रहा हो, जो चीज़ एक्सेप्ट करता है उस एक्शन को, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हमारे पास वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल। हियर इन दिस सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिकॉज द स्कूल which we think that is a subject but it is not object. It is a verb of place or complement which complete the grammatical structure of the sentence he goes to school. So we can say that sentence structure should be like this: subject and predicate. We can also write this subject plus verb plus no object. In case अब हमारे पास अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो, सॉरी, अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो फिर वर्ब से एक्शन ऑब्जेक्ट को पास नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, मैंने पहले भी बात की कि कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर हमें ज़रूरत हो सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, तो हम या एडर ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करते हैं या कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सेकंड वन होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव हो फिर एक्शन पास होगा वर्ब से ऑब्जेक्ट को। तो ये सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेस पर कि हमारे पास सेंटेंस में थॉट्स कितने हैं, हमारे पास सेंटेंस में क्लासेस कितने हैं या पार्ट्स कितने हैं, उसकी बेस पर हमने सेंटेंस को क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लास एंड दैट क्लास मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन। सिंपल सेंटेंस वो होगा जो हमें एक थॉट्स के बारे में बताएगा, हमें एक थॉट्स प्रोवाइड करेगा। जब कभी एक सेंटेंस में एक थॉट हो और उसमें एक ही क्लास हो, और वो क्लास कौन सा क्लास हो? इंडिपेंडेंट क्लास हो जो अकेली माने दे सकता है, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आई हैड अ चेन। अब क्लास क्या है? तो क्लास हमारे पास एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। लेकिन जो पॉइंट है सेंटेंस और क्लास की डिफिनीशन में वो ये है कि क्लास सेंटेंस का पार्ट होगा, एक लॉन्गर सेंटेंस का। हम ये कह सकते हैं कि हर सेंटेंस क्लास है लेकिन हर क्लास सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। तो हमने सेंटेंस को डिफाइन कुछ यूँ किया था कि सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देगा, तो उस केस में सबऑर्डिनेट क्लास को हम सेंटेंस नहीं कह सकते, लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट है। तो क्लास का हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि क्लास हमारे पास क्या है? वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और ये हमें माना दे भी सकता है, कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास ये हमें कंप्लीट सेंस देगा, स्टैंड ऐलान करेगा। इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, डिपेंडेंट क्लास इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम डिपेंडेंट क्लास, तो तब हमें वो सेंस नहीं देगा और अकेले स्टैंड भी नहीं कर सकता। आई हैड अ चेन, इट्स अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लास। He has a ball, Hera is a good girl। तो ये सिंपल सेंटेंस होगा।
इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस कन्वेज मोर देन वन थॉट्स। पहला कंडीशन ये बता रहा है डेफिनेशन कि हमारे पास कंपाउंड जो सेंटेंस होगा उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा थॉट्स होंगे, एक से ज़्यादा थॉट्स प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात बता रहे हैं कि एंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लास मेन क्लासेस। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट क्लास वो होगा जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा लेकिन वो स्टैंड करेगा ऐलान, उसको ज़रूरत नहीं होगी किसी दूसरी चीज़ की कि वो उसको एक्सप्लेन करे। तो वो सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस हो, एक से ज़्यादा थॉट्स हो, लेकिन वो जो क्लासेस होंगे वो कोऑर्डिनेट क्लास होंगे, मेन क्लास होंगे। फॉर एग्जांपल अ हॉर्स गल्प्स एंड अ tortoise crawls। तो घोड़ा सरपट दौड़ता है और किचुआ रेंगता है। यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट सेंटेंस है, अ हॉर्स गल्प्स एंड अ tortoise crawls। लेकिन अ हॉर्स गल्प्स ये इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करें इस जुमले से तो ये फिर भी एलान स्टैंड कर सकता है, हमें कंप्लीट सेंस दे सकता है। तो ये हमारे पास एक क्लास हुआ, इसको हमने कनेक्ट किया है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू एक और इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, अ tortoise या tortoise crawls। तो जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लासेस हो और वो कौन से क्लासेस हो कंडीशन बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट क्लासेस होने चाहिए, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। और दूसरी बात वो थॉट्स भी हमें एक से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। अली टुक टी बट आई प्रिपेयर्ड अ कोल्ड ड्रिंक। अली ने चाय ली और मैंने कोल्ड ड्रिंक को तरजीह दी। यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्लासेस है क्योंकि बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर मैं इस आई प्रिपेयर्ड अ कोल्ड ड्रिंक इसको एक्सट्रैक्ट करूँ इस जुमले से तो ये फिर भी कंप्लीट सेंस देगा, स्टैंड करेगा ऐलान। तो वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा थॉट्स हो और उसके साथ साथ क्लासेस होंगे एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लासेस, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस is that sentence which consists of one main class and one or more coordinate class। ये सेंटेंस का वो टाइप है जिसमें हमारे पास थॉट्स एक से ज़्यादा होंगे, क्लासेस भी एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें एटलीस्ट एक क्लास मेन क्लास होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लास होना चाहिए। बाकी जितने भी क्लासेस होंगे रेस्ट ऑफ द क्लासेस मे बी इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। एक इंडिपेंडेंट होगा, ये कंडीशन है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बाकी जो क्लास होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल, व्हेन ही सॉ मी ही रन अवे। अब ही रन अवे एक इंडिपेंडेंट क्लास है बिकॉज इट कैन स्टैंड एलान एंड इट कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस। व्हेन ही सॉ मी ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता जब तक इसके साथ हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ये ना हो। सेकंड, यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है कि जब कभी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास फर्स्ट आ रहा है एक सेंटेंस में तो फिर हम कामा का इस्तेमाल करेंगे इंडिपेंडेंट क्लास ही सेपरेट करने के लिए इसको। लेकिन अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास आ रहा है फर्स्ट तो फिर कामा का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, सिंस द पीपल वर इनोसेंट, क्योंकि लोग जो थे वो मासूम थे, इन अ सेंस स्टूपिड, दे चूज हिम देयर प्रेसिडेंट व्हिच वाज अ मिजरेबल थिंग। तो यहाँ पर भी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास फर्स्ट आ रहा है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करो इस जुमले से तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और यहाँ पर भी कामा का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास फर्स्ट आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस की मीनिंग के बेस पर, सेंस के बेस पर 5 टाइप से या 5 काइंड्स है। द फर्स्ट वन इज असर्टिव or declarative sentence। A sentence that makes a statement, वो sentence जो एक assertion देगा, declaration देगा, proclamation करेगा या एक statement देगा तो वो sentence assertive होगा। अब जो assertive sentence है ये 2 aspects explain कर सकती है, या तो वो aspect जो explain करेगी, जो statement ये देगी, जो proclamation ये करेगी वो positive भी हो सकता है, negative भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन केस अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डिक्लेरेशन है, पॉजिटिव असर्शन है तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये हमारे पास अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव ये सब क्लास है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है
जो डिक्लेरेशन है, जो असर्शन है, वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। लेट्स सी द एग्जांपल, इकबाल इज अ टीचर, आई लिव इन लाहौर। ये स्टेटमेंट है सारे, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वी शैल गो टू कराची टुमारो। लेकिन ये हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्रेस कर रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। इकबाल इज़ नॉट अ टीचर, इकबाल टीचर नहीं है। ये दोनों जो सेंटेंसेज है, ग्रुप्स हैं जो हमने क्लासीफाई की है, नेगेटिव और अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ये फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव होने चाहिए, डिक्लेरेटिव होनी चाहिए, इसमें असर्शन होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, तब जाके ये अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चंस, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरोगेटिव रहेगा। इसमें हम साइन ऑफ, जो क्वेश्चन मार्क का साइन है उसका इस्तेमाल करेंगे। इज इकबाल अ टीचर, डू यू लिव इन लाहौर, डज ही गो टू कॉलेज एवरी डे, शैल वी गो टू कराची टुमारो। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन होगा, सिंपल सी बात है, वो इंटरोगेटिव होगा। अब हम जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये हम टू मेथड का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास सेंटेंस में WH वर्ड आ रहा है तो हम प्रायोरिटी देंगे WH वर्ड को कि वो जुमले के स्टार्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, हाउ आर यू, ये सारे क्या है, WH वर्ड्स है। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे WH वर्ड्स हैं। अगर ये आ रहा है जुमले में तो हम उसको फर्स्ट में लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास सेंटेंस में WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो फिर हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इज इकबाल अ टीचर, तो यहाँ पर हमारे पास WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, विच फंक्शन इज द लिंकिंग वर्ब हियर, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज WH वर्ड का अगर हो, अगर नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लाजिम नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब फंक्शन करे, यहाँ पर क्या, कौन से वर्ब का फंक्शन करे, लिंकिंग वर्ब का, बिकॉज इट लिंक द प्रेडिकेट पार्ट विद सब्जेक्ट, लेकिन है एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट ऑफ द रूम, प्लीज लेंड मी सम मनी, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर एक बात है कि जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं कि जब कभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये वेन एवर वी आर एड्रेसिंग समवन, मतलब ये है कि जो स्पीकर होता है वो किसी को एड्रेस कर रहा होता है, तब जाके वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करता है, वरना इस तरह नहीं होता। एक बंदा प्रेजेंट ही नहीं है तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड है, गेट आउट ऑफ द रूम, इट्स मीन दैट आई एम एड्रेसिंग समवन, दैट यू गेट आउट फ्रॉम द रूम, प्लीज लेंड मी सम मनी, हियर वी आल्सो एड्रेसिंग समवन, बट दैट स्पेसिफिक पर्सनालिटी इज अंडरस्टूड हियर। Always trust in God, here we also addressing someone and we are advising someone, don't waste your time. It is an advice, it is also advice, and is a request, and the first one is order. The last one is exclamatory sentence, a sentence that expresses a strong feeling, a sudden feeling or emotions. वो sentence जो express करे strong feelings को, emotions को, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन से, हुर्रा, वटा, आह, हुर्रे, अप्लास, ये हमारे पास सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। वी हैव ओन द मैच, माई मदर हैज़ फैल्ड, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, हाउ हाई द वॉल इज़। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, और यहाँ पर हम वर्ब को भी एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, क्या है, एक सडन फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, स्ट्रांग फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, इमोशंस को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल भी करेंगे। द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो
तो वो सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम विशेस आर प्रेयर्स, जिसमें दुआ हो या ख्वाहिशात की बात हो रही हो, तो हम कहेंगे हमारे पास अपडेटिव सेंटेंस है। और जितने भी सेंटेंसेस होते हैं अपडेटिव, उसमें ज़्यादातर हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। मैं यू लिव लॉन्ग जो मॉडल वर्ब है मैं उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं पाकिस्तानी प्रॉस्पर, मैं गॉड ब्लेस यू विद अ सन, वुड दैट ही वर अलाइव टुडे, व्हाट दैट वी हैड लर्न इंग्लिश इन चाइल्डहुड। ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या तो विशेस को एक्सप्रेस करेगी, या प्रेयर्स को, या इम्पॉसिबल होप्स को। तो यहाँ पर लेक्चर का एंड हो रहा है। हमने क्या डिस्कस किया? हमने सेंटेंस के बारे में बात की कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, ये वर्ड्स का कम्बिनेशन है, मीनिंगफुल कम्बिनेशन है। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की, जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। फिर हमने टाइप्स की बात की, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। उसके बाद हमने काइंड्स के बारे में डिस्कस की। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग लेक्चर we will talk about parts of sentence, subject, object, complement with detail. So if you wanna to attach with us, I would like to request you people that please subscribe the channel Exam Master. Till now it's good enough for today. In the upcoming lecture we will discuss next things. Till that time, Allah Hafiz and stay safe.